Namaste. Namaste, Namaste. sir. Namaste. Yeah. So let us start our session with the chantings of the Omkar, requesting you all to sit with your spine erect, keeping your shoulders proper, keeping your chin parallel to the floor. Slowly inhale. Gently open your eyes. Yes, friends, a very good morning to all of you once again. Let us start with the topic of Ashtakumbhaka. Last class, we have been discussing all the prerequisite along with the Nadi Shodhan. Shlok number 46. Sahitah Surya Bhedascha Ujjayi Shitali Tatha Bhastrika Brahmari Murcha Kevali Cha Ashtakumbhakaha. There are 8 kumbhakas. And see, in Hatha Pratipika, we started with Surya Bhedan Ujjayi. Here we are starting with Sahita Surya Bhedan. Then comes Ujjayi, Sitkari is missing. Missing in the sense it is not considered. Sahita is being added there and Sitkari is taken out. And then Shitali is there as with comparison with the Hatha Pradipika. Bhastrika, Brahmari, Murcha, all these 3 are there, but instead of Plavini, Gherana Muni has gone ahead to include Kevali there. Sahita and Kevali were discussed in Hatha Pradipika separately. And it was clearly mentioned that all the Ashtakumbhakas are nothing but the Sahita Kumbhaka, which lead you towards Kevali. And now see here, in this shloka, we are starting with Sahita and the ending with Kevali. That means right from the first Kumbhaka of Sahita Kumbhaka, we are going ahead and eventually doing the practice of Kevali. And when you see the explanations given about Kevali, you will literally understand that how Kevali is the result of the practice of the other pranayam and what should be our approach or what should be our attitude while practicing the Kevali pranayam. It is like now you have done all the hard work and now you are just letting go or you are just allowing yourself to surrender to your breath and how breaths are making you to understand the impact of Kevali pranayam. So that journey we are going ahead now. Coming to shlok number 47, explaining us about Sahita. Sahito dvividah proktaha sagarbascha nigarbakaha sagarbo बीजम उच्चार्य निगर्भो बीजम वर्जिता। अब वो क्लियरली बोल रहे हैं कि सहित प्राणायाम जो है वो 2 प्रकार का है, एक तो सगर्भ है और दूसरा निगर्भ है। सगर्भ प्राणायाम जो है वो बीज मंत्र सहित है, सगर्भो बीजम उच्चार्य, और निगर्भ कैसा है, वो बीज से वर्जित है। अब ये तो हमने नाड़ी शुद्धि में भी देखा कि
पूरक लेते समय कोई बीज अक्षर का हम मन ही मन उच्चारण कर रहे हैं, कुंभक करते समय भी कर रहे हैं, रेचक करते समय भी कर रहे हैं। और यही बात उन्होंने यहां पर कंटिन्यू की है और कहा कि ये जितने भी सहित प्राणायाम होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो सगर्भ और दूसरा निगर्भ। और सगर्भ के अंदर मंत्र सहित होता है और निगर्भ में मंत्र रहित यानी बीज रहित। प्राणायामम सगर्भम च प्रथमम कथयामि ते। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट सगर्भ फर्स्ट। सुखासने च उपविश्य प्रांग मुखो व अपि उदंग मुखः। सुखासने च अपि विश्य, ऐसे आसन में बैठो जो आपके लिए सुखदायक हो। प्रांग मुखो व अपि उदंग मुखो, आइदर यू फेस इन द ईस्ट और यू फेस इन द नॉर्थ एंड सिट इन दैट पोजिशन। अब ये बात और है कि इसके क्या बेनिफिट हैं, हमको इसी तरफ क्यों फेस करना चाहिए। व्हेन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू माय टीचर, ही टोल्ड कि व्हेन यू आर फेसिंग ऑन दिस साइड, the air that you are inhaling and the same one which you are exhaling is hardly obstructed by the external wind when you are facing to this side. And the without any obstacle, if the breath is flowing through the nostril, going in or coming out, it will help you to align the calmness, or you can say the state of mind and body in a beautiful manner. Now, this is a scientific research to be done, because ऐसी जब कोई बात कोई टेक्स्ट बुक में आ जाती है ना, तो मैं ये देखता हूँ कि क्या इसके ऊपर कोई स्टडी हुई है। आई जस्ट गो टू द इंटरनेट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, बट नो स्टडीज हैव बीन डन, नो स्टडीज हैव बीन डन ऑन दिस एस्पेक्ट। सो व्हाई आवर rishis and munis might have told that we should face to the east and face to the north and do the practice। और ये सवाल मैं रिसर्च का जब, अभी मैं खुद भी एक रिसर्च स्कॉलर हूं, तो ऐसे सवाल दिमाग में आते हैं। तो जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो ऐसे पूछा गया, तो आपको एक बड़ी अजब बात पता चलती है। अगर आप योग कोरंटला, एक ऐसा हठ योग का ग्रंथ है जो सदर्न इंडिया से लिखा गया है, इट हैज बीन रिटन डाउन इन साउथ इंडिया, और आपको हैरत होगी कि उसमें लिखा हुआ है कि यू शुड बी फेसिंग द साउथ एंड डूइंग इट, न ईस्ट न नॉर्थ न वेस्ट। तो ये जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं हर जगह के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। तो हमारे जैसे लोग जो वेस्टर्न इंडिया में रहते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं या ईस्टर्न इंडिया में रहते हैं, वो नॉर्थ और ईस्ट को फेस करके कर सकते हैं। लेकिन अगर साउथ की बात की जाए तो शायद हो सकता है उन्होंने उसको आजमाया होगा, वो किया होगा। तो इट डजंट डायरेक्टली अप्लाई to how to sit and practice, but no text says that you can face on in the west also and you can do. A yoga teacher should take note of this very seriously, and they should try to bring about the changes in not only their practices but the place where they teach others the practice of hatha yoga or pranayam, you can say. They should literally make people to observe that and help them out. Then see the third line, रजोगुणः विधिम ध्यायेत रक्त अवर्णकम, रक्त अवर्णम वर्णकम। हाँ, ध्यायेत रक्त वर्ण अवर्णकम। अब देखो यहां पर उन्होंने रजोगुण विधिम, रजोगुण विधिम, somewhere he is talking about the raja, and at the same time saying rakta varna, color is red,
एंड अवर्णकम मीन्स द बीज अक्षर इज अ। अब ये पूरक की बात हो रही है, आगे क्या कहते हैं वो। अच्छा चलो इसका ट्रांसलेशन हम पढ़ लेते हैं। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन टू यू सगर्भ प्राणायाम। सिटिंग इन द सुखासन पोस्चर फेसिंग द ईस्ट और द नॉर्थ, कंtemplate on Brahma associated with Rajas, red in color and characterized by letter A of Om। अब ऑफ ओम तो ये कैवलधाम पब्लिकेशन का उन्होंने यहां पर ऐड किया हुआ है। ओके, अब यहां पर देखो ट्रांसलेशन में डेटी का नाम ब्रह्मा लिखा गया है, जबकि वो श्लोक में हमको नहीं मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अगले दो श्लोक आप पढ़ेंगे जो रिटेंशन के लिए और रेचक के लिए है, तो वहां पर विष्णु जी का हरि बोल के नाम लिखा हुआ आता है और महेश का भी नाम आता है। तो इसीलिए यहां पर ट्रांसलेशन में कैवलधाम वालों ने ब्रह्मा को अ के साथ में ऐड कर दिया। सो दिस इज हाउ वी शुड अंडरस्टैंड द वर्ड्स बिहाइंड these श्लोकास एंड ट्राई टू पुट इनटू आवर प्रैक्टिस। Sir, अब देख, so हाँ जी, vidhi sometimes is used for Brahma. अच्छा ओके, Word आई वॉज vidhi नॉट नोइंग is दिस। sometimes used for Brahma ओ in Sanskrit. अच्छा, बट मेनी अ टाइम्स वी टेक इट एज व्हाट इज टू बी डन। विधि मीन्स टेक्निक, ऐसा हम लेते हैं उसको। तो अगर That आप also is विधि correct. Yeah. हाँ, तो बट व्हाट यू आर प्रातर सेइंग विधि ये। कहते हैं हम, अंत्य अच्छा, विधि कहते हैं। ओ Yeah, but तो vidhi is also referred to as Brahma. oh that's was nice sharing sir, thank you very much। I never came across this, this is the first time that I'm coming to this knowledge कि विधि यानी ब्रह्मा भी होता है। so this is a very good realization। तो अब ये बात हो गई। अब आगे देखो 49th में द पूरक टेक्निक इज बीन एक्सप्लेन। ये टेक्निक जो है नाड़ी शोधन से डिफरेंट नहीं है, दैट्स व्हाट वी हैव टू सी एंड हाउ द वर्ड ऑफ अनुलोम विलोम कम्स हियर इनटू दिस एक्सप्लेनेशन। ईडया पूरयेद वायुम मात्रया षोडशैः सुधिः पूरकांते कुंभका आद्ये कर्तव्यस्तु उड्यानकः। नाउ एड़ा नाड़ी से आपको इनहेलेशन करना है, पूरक करना है 16 टाइम्स एंड आफ्टर इनहेलेशन before cessation of breath, this is to be marked here now, it is said that let us perform उड्यान। हमने हठ प्रतिपिका में क्या पढ़ा था, कुंभका अंते रेचकादौ, कुंभक के अंत में और रेचक करने से पहले आपको उड्यान लगाना है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है एकदम स्पष्ट शब्दों में कि जैसे आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, आप कुंभक लगाने से पहले क्या लगाओ, उड्यान बंद। सो वेरी क्लियरली सेट, ईडया पूरयेद वायु मात्रया षोडशैः सुधिः पूरकांते कुंभका आद्ये कर्तव्यस्तु उड्यानकः। सत्वमयम हरिम ध्यात्वा ऊकारम कृष्णवर्णकम चतुस्तया च मात्रया कुंभके नैव धारयेत्। अब हमको कुंभक जो है वो 4 टाइम्स करना है बाय कंtemplating ऑन हरि and associating him with sattva। He is of dark complexion and characterized by letter U। अब ये जो ब्रह्मा को रजस के साथ में जोड़ दिया और विष्णु को सत्व के साथ में जोड़ दिया। अब एक बात मैं और भी बताता हूं कि कई टेक्स्ट के अंदर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ब्रह्मा इज ऑलवेज कनेक्टेड विथ सत्व एंड विष्णु इज कनेक्टेड विथ रज, बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट, इट इज ऑल्सो राइट। अब यहां पर आप This is a sorry. हाँ या Fundamental. See, this is as fundamental as it can get. हाँ क्योंकि जो सृष्टि 3 गुण से बनी है, हाँ और सारी जो माने मैनिफेस्टेशन और एक्टिविटी है, दैट इज वो रजस। हाँ, तो वो इन गुण के कैरेक्टरिस्टिक्स से ही आगे बढ़ती है। सो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट पैराडाइम शिफ्ट। अगर हम सत्व को विष्णु जी के साथ जोड़ते हैं, सत्व को ब्रह्मा जी के साथ जोड़ते हैं, तो ये बहुत डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज हो जाते हैं कि भाई क्रिएशन के अंदर क्या राजसिक एनर्जी, मतलब
रजस की जरूरत होती है, बैलेंस की जरूरत होती है। मेरा अनुभव, एंड आई हैव वर्कड ऑन दिस फॉर नाउ 2 decades, क्योंकि सांख्य में, और ये क्या हुआ कि हमें भी पहले जब टीबीसी किया, तो क्योंकि सत्व पे इतना एम्फेसिस था, तो हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप हुई कि ब्रह्मा जी जो है, क्रिएशन तो एक होली सी एक्टिविटी है, तो ब्रह्मा जी सत्व से, विष्णु जो है वो रजस से है, क्योंकि ये मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा एक्टिविटी चाहिए होती है, और तो वो उसमें भाग दौड़ वगैरह वगैरह, द वे ह्यूमन अपने कंडीशन से अपन करते हैं। भगवान शिव का तो खैर वो है जो है ट्रांसफॉर्मेशन का काम। फिर हमने जब सांख्य की स्टडी, हमारे जो आचार्य थे अभी कोटागिरी में, तो उनसे फिर हमने पूछा कि भाई ये कैसे, क्या एसोसिएशन है। उन्होंने कहा नहीं, विष्णु जी सत्व से एसोसिएट होते हैं, ब्रह्मा जी रजस से होते हैं। अब हमारी दुविधा, हम सालों दुविधा में रहे कि भाई ये ऐसा या वैसा, और उससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि मेरा 10 साल से काम तो था ही ये मॉडल बिल्डिंग का है, सो लॉट ऑफ क्रिएटिविटी इज इन्वॉल्व्ड। मैंने कहा भाई अपने मेरे जो बिहेवियर में बैलेंस तो मुझे नहीं दिख रहा भाई। क्रिएटिविटी के लिए तो इतना ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, इतना ज्यादा कि उसमें बैलेंस तो खो जाता है। मतलब तमोगुण का तो दूर दूर तक दिखता नहीं है। रात को नींद नहीं आती, नींद में सोचते रहते हैं, ऑल दैट इज रजस। तो तमस कम हो जाता है। तो मुझे देयरफॉर फ्रॉम एक्सपीरियंशियली आई एग्री विद द इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि creativity is associated with rajas, a lot of activity, and also maintenance may actually to keep something going. See, you have to really, it's not so much activity as you have to know what to use when. भाई कहाँ पे, जैसे किसी के साथ हमें कुछ बातचीत करनी है, तो किसको डराना धमकाना है, किसको प्यार से बात करनी है, ये it's you have to, it's a matter of judgment, right? So really to make things continue to happen and sustain, what you require is really a balance, a judgment between the one and the other. So and You are right. हाँ, In fact, हमने भी ऐसे ही पढ़ा, और हुआ क्या कि मैं अपने टीचर से बोल बैठा, सर यहाँ तो गलत लिखा हुआ है, ये तो ब्रह्मा जी को रजस से कनेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये गलत नहीं है, ये सही है। और उन्होंने इसको प्रैक्टिकली प्रूव किया। और वो प्रैक्टिकली कैसे प्रूव किया उन्होंने प्राण धारणा का कंसेप्ट हमारे सामने रखा और बोले कि आप शांति से पीठ को सीधा रखकर बैठ जाओ, एंड यू हैव टू डू 4 step breathing. What is that 4 step breathing? First, of course, you are going to inhale, and then you are going to retain, you are going to exhale, and you are going to retain. So retention after exhalation is outside, retention after inhalation is inside. और उन्होंने बोला आपको 5 से 10 मिनट तक आपको प्रैक्टिस करनी है, ये 1 2 3 मिनट में समझ में नहीं आएगा। तो जैसे ही उन्होंने ये प्रैक्टिस कराना शुरू कर दी, तो लिटरली आई वाज कनेक्टिंग with the explanation. Okay, when I am inhaling, it is said here, the Purak is associated with Rajas, and that is Brahma. So I am creating that kind of environment inside my body, which is a creation, and then sustaining my breath as per my capacity. It is not that I am forcibly retaining the breath, and then I am exhaling also. And when I have exhaled, I am retaining my breath outside. और सर ने इसको नाम दे दिया सहज कुंभक का। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई आपका पूरक, कुंभक, रेचक का कोई रेशियो मायने नहीं रखता, आपको इसको सहज बना के जो है इसको एक्सपीरियंस करते रहना है। अब आपको मैं बताता हूं 5 से 6 मिनट के प्रैक्टिस के बाद क्या होता है कि पूरक और रेचक भले ये रजस और तमस से रिलेटेड हो,
लेकिन रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ इन एंड रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ आउट इज प्योरली कनेक्टेड विद दैट सत्व। और ये पता चलता गया कि the retention of the breath in or out, they both were becoming very easy as the time was passing by. Not only our breaths were becoming prolonged, not only the breathing was becoming easier and easier, but at the same time it was becoming prolonged and shallow breaths were happening. और वो shallow breaths को जो हम regular deep breath लेते हैं उससे भी ज्यादा समय लिया जा रहा है। तो ये दीर्घ और सूक्ष्म की व्याख्या जो है, जो हमने योग सूत्र में पढ़ी, वो क्लियर हो गई। और वो क्लियर होते होते ये समझ में आया कि ये जो रिटेंशन वाला जो बीच का जो हिसाब किताब है, ये हमको ऐसा समय दे रहा है कि ना सांस लेने की इच्छा हो रही है, ना सांस छोड़ने की इच्छा हो रही है। तो सांस छोड़ दी तो लेने की इच्छा नहीं हो रही है, ले ली तो छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही। तो यानी सोचो कि इच्छा नहीं हो रही का मतलब क्या हुआ कि वी आर नॉट गेटिंग इन दैट राजसिक और दैट डिस्ट्रक्शन एटीट्यूड ऑफ तामस, we are prevailing in that sattva. And how pranayam is a more sattvic activity rather than calling it as a rajasic or tamasic. No doubt any activity has all the three gunas. बिना त्रिगुण के आधार के कोई भी गुण जो है आगे बढ़ता नहीं। तीनों गुण होने चाहिए उसमें। अगर सत्व को भी आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं तमस और रजस का होना बहुत जरूरी है। एंड दिस we need to be very clear with this fundamentals. और ये जब उन्होंने समझाया तो अब क्लास खत्म हो गई। फिर हम लोगों से पूछा कि अब आप बताओ कि आप इनहेलेशन के समय आपको क्या लग रहा था, एक्सहेलेशन के समय क्या लग रहा था। और ये गुणात्मक तौर से जैसे आप लोगों ने रजस, सत्व और तमस को समझा, ये गुणात्मक तरीके से अगर आप रिलेट करेंगे तो आपको कैसे लग रहा है। तो एवरीवन एग्रीड कि yes, the sustenance of the breath in and out without any effort was not only making us more peaceful, more clear with the understanding of the subject, but at the same time it was more peaceful also. और यही क्वालिटीज हैं सत्व की। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेंटेनेंस जो यहां पर आया, दिस शुड बी ऑलवेज रिलेटेड विद दैट सत्व। और जो पूरक है, वो जो क्रिएटिविटी वाली बात है, उसको आप रजस से कनेक्ट करो। और जो रेचक है उसको आप जो है महेश से कनेक्ट करो। इट मे बी डिस्ट्रक्टिंग, मतलब आपने जो लिया, पाया, उसको यूज किया और अब आप उसको छोड़ रहे हो। अब उसको जब छोड़ रहे हो तो इट इज नॉट नीडेड, दैट इट मींस यू आर लेटिंग इट टू गो टू प्रलय। अब इस तरह से समझाते हुए वो उन्होंने इस बात को समझा। लेकिन कई जगह पर आप उपनिषद भी अगर आप देखेंगे ना, तो कई उपनिषद में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि ब्रह्मा इज एसोसिएटेड विद सत्व, विष्णु इज एसोसिएटेड विद रज। आप मांडुक्य कारिका, आदि शंकराचार्य जी ने उसके ऊपर टीका लिखी हुई है। ये मतलब मांडुक्य कारिका उनकी लिखी हुई पुस्तक। उसके अंदर उन्होंने ओमकार के अ उ म को बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। जबकि अगर आप खाली उपनिषद पढ़ेंगे तो 12 श्लोक या सूत्र आप जो भी कहें उतने 12 ही हैं। लेकिन जब वो कारिका पढ़ते हैं तो उसके ऊपर 2 वॉल्यूम लिखी गई है। और वो 2 वॉल्यूम वाली ग्रंथ में हमको एक क्लैरिटी आ जाती है कि ब्रह्मा सत्व से कैसे कनेक्टेड है। दैट बिकम्स द वेल्थ ऑफ द नॉलेज दैट वी हैव इन अवर कल्चर। और वो ज्ञान योग है, वो प्रैक्टिकली करके पाने वाला हठ योग नहीं है। और ज्ञान योग और हठ योग को किस तरह से हम कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारे त्रिगुणात्मक जो एग्जिस्टेंस है उसको किस तरह से समझना चाहिए, ये क्लैरिटी हमको आ जाती है। नहीं तो नया स्टूडेंट क्या बोलेगा, अरे वो बुक में तो ऐसे लिखा हुआ है कि ब्रह्मा इज एसोसिएटेड विद सत्व एंड हियर इट इज बीन रिटन एज ब्रह्मा इज एसोसिएटेड विद रजस। नाउ व्हाट टू से राइट एंड व्हाट टू से रॉन्ग, कौन सा सही हो सकता है, इसके पीछे जो बात है ये क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। एंड दिस हैज टू बी कन्वेड टू द स्टूडेंट टू मेक देम अंडरस्टैंड। हाँ जी। तो और सपोर्टिंग जो है पीसेस ऑफ सो टू से नॉलेज, या आपको याद है कुछ 3-4 क्लास पहले आयुर्वेद में जो बात हो रही थी अग्नि की,
अग्नि का जो है, जो अग्नि का जो एलिमेंट है वो सबसे रिलेटेड, इसलिए हमारी सारी जो जठर अग्नि और बाकी अग्नि है वो डॉक्टर भिड़े ने बताया था कि वो आयुर्वेद जो है सत्व से एसोसिएट करता है, ख्याल है। और वो सही भी है क्योंकि रजस का फियरीनेस और वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अग्नि के साथ बिल्कुल सही मैच करता है। दूसरी चीज, अगेन फ्रॉम अ सांख्य स्टैंड पॉइंट, अगर हम उसको वाइब्रेशन के तौर पे लें, क्योंकि सारी विश्व जो है नथिंग बट वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस, तो वाइब्रेशन के 3 फेजेस होते हैं। दो एलिमेंट्स हैं, जैसे ट्यूनिंग फोक है, साथ में वाइब्रेट कर रहे हैं। When there is an expansion phase, there is a reversal phase, there is a contraction phase. So जो हमारे श्रीनिवासन साहब बता रहे थे कि expansion phase is सत्व, sorry, expansion is सत्व, the reversal is associated with rajas and the contraction is associated with tamas. Am I audible? Yes, you are audible. Hello? But at the same time, your voice is Am I breaking a audible? lot. I think the internal unstable. Huh? So to repeat, the expansive phase of an interaction of the expansive phase is sattva, expand कर और फिर there is a reversal of direction, है ना? So then जैसा simple harmonic motion होता है, expansion फिर वापस इधर आता है, pendulum जो होता है पूरा पहुंच जाता है एक साइड, expansion, then reversal and then contraction, right? So उन्होंने कहा कि expansion is सत्व, सत्व का नेचर है एक्सपेंशन, रजस इज द इंटरलिंकिंग एंड तमस इज कॉन्ट्रैक्शन। सो आपने जो अभी अभी जो अनुभव बताया जो आपके गुरुजी के साथ, अगेन देखिए इनहेलेशन वाज नहीं, इनहेलेशन अपन ने रजस का बोला था। हाँ, अच्छा नहीं, यहाँ थोड़ा सा उसमें रजस इज दी, चलो आई विल वर्क दिस आउट। एनीवे आयुर्वेद में तो वो सपोर्ट है ही इसके लिए, लेट मी वर्क दिस आउट एंड प्लीज कैरी ऑन, सॉरी। Yeah. So then here it is said, Samatvayam Harim Dhyatva Ukaram Krishna Varnakam Chatuhu Sasya Cha Matraya Kumbhakanaiva Dharayet। तो चतुस्तया च मात्रा, यानी जो रिटेंशन है वो पूरक का 4 गुना होना चाहिए, एंड दैट मीन्स 16 4 जा 64। तो 64 मात्रा तक जो है हमको कुंभक रिटेन करना चाहिए। अब आगे, तमोमयम शिवम ध्यात्वा मकारम शुक्ल वर्णकम द्वात्रिंशन मात्रया च इव रेचयेद विधिना पुनः। तमोमयम शिवम ध्यात्वा मकारम। अब तमो गुण को जो है डेटी शिव को रखते हुए मकार का मन ही मन उच्चारण करते हुए शुक्ल वर्णकम, यानी समथिंग विच इज रिलेटेड टू व्हाइट कलर, और उसका जो रेशियो बताया इट इज 1:2 वाला कंपेयर टू द पूरक, दैट इज 16 to the 32, so 32 मात्रा you have to do the रेचक। इस तरह से जो है we have to do inhalation through the left 16, retention inside 64 and exhalation through the right 32। ये सातुशुद्ध सर बोलिए। It's very interesting that Tamo is shown with Shukla Varna. One would have expected Sattva Guna Darkness to be Shukla and Tamo Guna to be Krishna. But here it's very interestingly depicted as Tamo Guna as Shukla Varna. Exactly. And we need to know that somewhere it is leading towards that retention of the breath out, where there is more clarity of retention of the breath. It is like that. तो when we say, अब जैसे कि हमको ब्रह्मा का जो उन्होंने एसोसिएट किया रक्त
यानी रेड कलर से, and said that it is rajas. When it was connected with the sattva, it was connected with darkness, and when now it is connected with tamas, it is connected with whiteness. तो कहीं ना कहीं ये जो आगे का जो स्टेप है वो कलर को यहां पर जोड़ा गया है. वी हैव टू अंडरस्टैंड इट दैट वे. तो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक इट एंड गो अहेड. अच्छा, अब ये एक तरफा हुआ, यानी हाफ साइकिल इज कंप्लीटेड. नाउ ही इज गोइंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट द अदर हाफ साइकिल. पुनः पिंगलया अपूर्य कुंभके नैव धारयेत ईडया रेचयेत पश्चात तत् बीजेन क्रमेण तु. उसी तरह से पिंगला नाड़ी से पूरक करो, कुंभक करो, और ईड़ा से फिर रेचक करो, और ये वही बीज का जो क्रम है, यानी अ, उ और म, यही क्रम को रखते हुए उच्चारण करते हुए तुमको करना है. इनहेलेशन थ्रू द राइट नॉस्ट्रिल, रिटेन द एयर बाय परफॉर्मिंग कुंभक and expel it through the left nostril, repeating the बीज मंत्र in the way as it was prescribed. तो यहां पर पूरक, कुंभक, रेचक एक तरफ से लिया, one breath is completed, and from the other side the second breath is completed. तो एक साइकिल के अंदर 2 सांसें कंप्लीट हो जाती है. और अब आगे क्या लिखा हुआ है? अनुलोम विलोमेन वारम वारम च साधये. ये हमारे हठयोग के टेक्स्ट में पहली बार यहां पर आता है वर्ड अनुलोम विलोम. और कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर अनुलोम विलोम में और नाड़ी शुद्धि में क्या फर्क है? तो यहां पर एक क्लैरिटी हमको ये मिल जाती है कि नाड़ी शोधन इज अ प्रिपरेशन फॉर द प्रॉपर प्राणायाम, एंड व्हेन इट कम्स टू द सेम प्रैक्टिस ऑफ अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग with kumbhaka as a proper pranayam, then it becomes anulom vilom. So with kumbhaka, with proper what you can say, the understanding of purak, kumbhak, rechak with the ratios and all, and it is not nadi shuddhi anymore, it is more than nadi shuddhi, we have reached to a higher plane, then it should be called as anulom vilom. आपको हंसी आएगी. एक बार एग्जाम लेते समय मैंने जो सहयोगी जो थे, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा स्टूडेंट से कि अच्छा बताओ नाड़ी शोधन में और अनुलोम विलोम में क्या फर्क है, तो स्टूडेंट ने कहा कि सर वैसे तो कुछ फर्क नहीं है, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि नाड़ी शुद्धि जो है वो प्रिपरेशन है, और अनुलोम विलोम जो है एक सेटल्ड वे ऑफ प्रैक्टिस. तो उसने जो जवाब दिया उसके समझ के हिसाब से बिल्कुल सही जवाब था, लेकिन हमारे जो योग के जो शिक्षक, जो एग्जामिनर बैठे हुए थे, उन्होंने तुरंत कह दिया बिल्कुल गलत. तो मैं भी थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया. तो उन्होंने मार्क्स नहीं दिए उसके, 10 मार्क्स में से कुछ मार्क्स देने होते, तो मैंने उस बच्चे को 8 मार्क्स दे दिए, और भाई साहब ने जो है उसको 2 मार्क्स दिए. अच्छा, वो बैच चला गया, तो मैंने उसको पूछा कि आपने तो मार्क्स तो सिर्फ 2 ही दिए, इसका मतलब आपको उसका आंसर पता नहीं. तो मुझे ये बताओ वो एक्चुअली आंसर क्या है? तो वो थोड़ा सा ही वॉज टेकन अबैक कि नाउ ही इज सपोज टू आंसर अगर मार्क्स नहीं दिए. तो उन्होंने जवाब ये दिया कि सर उनको क्या कहना चाहिए था कि अनुलोम विलोम जो है प्रॉपर अष्टकुंभक में आता है, और नाड़ी शुद्धि जो है नाड़ी शोधन में आता है. तो मैंने उनसे एक ही बात कही, अष्टकुंभक का जो वर्षन है अनुलोम विलोम का, और नाड़ी शुद्धि का जो वर्षन है नाड़ी शुद्धि का, ये दोनों में फर्क क्या है? तो बोले नाड़ी शुद्धि इज प्रिपरेशन फॉर अष्टकुंभक. तो फिर वो बच्चे ने गलत क्या बोला? ही सेड द सेम थिंग कि नाड़ी शुद्धि जो है प्रिपरेशन है, और अनुलोम विलोम जो है इट इज लाइक कमिंग टू द लेवल of going ahead with the experience and doing better and better and better, excelling to the levels.
आप ये कह रहे हो कि ये अष्टकुंभक है और ये नाड़ी शोधन है, नाड़ी शोधन प्रिपरेशन है और अष्टकुंभक जो है प्रॉपर प्राणायाम है। तो नाड़ी शोधन जो है अष्टकुंभक की तैयारी है। तो व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड व्हाट द चाइल्ड सेड इज वेरी सिमिलर टू योर थिंकिंग एंड इट इज नॉट डिफरेंट? फिर तुमने मार्क्स क्यों कम दिए? अब वो बंदा वहां पर सॉरी तो बोल गया, कहीं ना कहीं उसके पास जो है ना काउंटर करने के लिए शायद वर्ड्स नहीं थे या उसके पास उतना नॉलेज नहीं था, बट एट द सेम टाइम he realized कि how in the examination we should take note of the understanding of the student and we should become more student centric rather than becoming examiner centric and becoming more and more egocentric over there. क्योंकि जब एग्जामिनर बन के बैठ जाते हैं ना तो एग्जामिनर को ऐसे लगता है जैसे कि जितना ज्ञान हमको है और किसी को नहीं। सबसे बड़ी दुविधा ये है एग्जामिनेशन के अंदर। और वो स्टूडेंट को ऐसे सवाल पूछते हैं कि उनको ये एहसास कराना होता है स्टूडेंट को तुमको उतना नहीं आता जितना हमको आता है। तो आई हैव सीन दिस एवरीवेयर, राइट फ्रॉम द टॉप ऑफ दिल्ली, हरिद्वार, डाउन टू द बॉटम चेन्नई एंड केरला। यही जो है नियत देखी है एग्जामिनर्स की। तो कहीं ना कहीं एज अ टीचर एंड एग्जामिनर वी ऑल्सो फेल। तो हमको ये देखना चाहिए कि सामने वाले की सोच क्या कह रही है, सामने वाले ने कहकर उसमें हमको क्या बताने की कोशिश की है। हाँ, वो सवाल को लेकर अगर आप जज करते हो देन इट इज फाइन, बट डायरेक्टली यू आर सेइंग दैट ही इज रॉन्ग ऑन द फेस ऑफ द चाइल्ड, then that becomes very wrong. Or as a teacher also, we need to first come to this realization कि literally what is the difference, because नाड़ी शुद्धि को भी हम अनुलोम विलोम बोलते हैं और इसको भी हम यहाँ पर जो है सहित प्राणायाम को फर्स्ट उसको अनुलोम विलोम कह रहे हैं। तो ये अनुलोम विलोम में और वो अल्टरनेट नॉस्ट्रल नाड़ी शुद्धि में फर्क क्या है, ये अष्टकुंभक में क्यों आ रहा है और वो वहां पर नाड़ी शुद्धि में क्यों है? अगर वो नाड़ी शुद्धि में है तो वो इसी के प्रिपरेशन के लिए है और यहाँ आने तक जो है हमने अपने आप का अपना जो लेवल है वो काफी ऊपर किया। और जो हायर लेवल के प्रैक्टिसेस में जब अनुलोम विलोम का अभ्यास होने लगता है तो ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड एज अनुलोम विलोम और वो नाड़ी शुद्धि से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो जो नाड़ी शुद्धि यानी नाड़ियों की सफाई हो रही थी, अब नाड़ियां शुद्ध तो हो गई और फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं वो प्रैक्टिस को, देन इट शुड बी कॉल्ड एज अनुलोम विलोम। दैट क्लैरिटी शुड बी ऑलवेज देयर एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नाड़ी शुद्धि एंड अनुलोम विलोम। या भाई वो प्रतिलोम का आप हाँ, वो मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं ढूंढा। एक्चुअली आई वॉज द होल वीक आई वॉज वेरी मच बिजी इन्वॉल्व एंड वॉज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ एक्सर्शन ऑल्सो। तो वो ध्यान में भी नहीं रहा, मेरे ध्यान से उतर गया। आई विल जस्ट चेक इट आउट। मेरे पास बुक है जो लाइट ऑफ जो योग जो है ना अयंगार जी की, वो मेरे पास है एंड इट इज रियली अ वेरी गुड बुक, लॉट ऑफ गाइडेंस आई हैव गॉट थ्रू दैट बुक। तो वो मैं पढ़ के देखता हूँ। अगर आपके पास जो बुक है उसमें कहाँ आपने देखा वो पेज नंबर मुझे बता देंगे तो आगे पीछे का मैं देखकर और आपको जो है क्लैरिटी बताने की कोशिश करूंगा। या तो हियर अनुलोम विलोमेन वारं वारं च साधयेत् पूरका अन्ते कुंभका अंतम धृतनासा पुटद्वयम् कनिष्ठ कनिष्ठ अनामिका अंगुष्ठैः तर्जनी मध्य में वीणा। तर्जनी एंड मध्य में वीणा यानी ये जो दो उंगलियां हैं इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इसका यूज आपको न करते हुए ओनली यू हैव टू यूज द थंब दैट इज अंगुष्ठ और कनिष्ठ एंड अनामिका दैट इज द रिंग फिंगर एंड द स्मॉल फिंगर। तो ये किसके लिए? आपके नाक को बंद करने के लिए एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ से छोड़ने के लिए। अब ये इसका वर्षन जो है कुछ लोगों ने ऐसे निकाल लिया। अगर आप देखेंगे आर्ट ऑफ लिविंग में तो वो लोग ये दो उंगलियां यहां रखते हैं एंड दे गो फॉर दैट अनुलोम विलोम दिस वे। ओके, और ये दो उंगली उनके भ्रू मध्य से हिलती नहीं, वो वहीं पर टिका कर रखते हैं। ठीक है, यूज तो नहीं कर रहे लेकिन कहीं ना कहीं टिका दिया उसको। और हम जो है उसको अंदर कर लेते हैं, प्रणव मुद्रा कहते हैं या अंगुली मुद्रा कहते हैं, कुछ लोग इसको नासिका मुद्रा भी कहते हैं। यहां पर कोई मुद्रा का नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन फिर सवाल उठता है कि ऐसे क्यों करें? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो इसके रीजन जो है वो पंच महाभूत से कनेक्टेड है।
जहां पर द वायु, द स्पेस and the Agni are into mobilization, whereas the other two, the earth and the water, they are at rest. तो इसका मतलब क्या होता है? Earth and water are the grossest of the elements, and the other three are the subtle ones. So from the gross level, we are excelling towards the subtler aspect of our existence. तो ऐसे तो टीचर ने तो समझा दिया, बात समझ में भी आ गई। तो मैंने पूछा, लेकिन सर ये उंगलियों में हमको क्यों पंच महाभूत को समझना चाहिए? पूरा शरीर पंच महाभूत का है। बोले हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हमारे मेंटल लेवल पे ये एहसास रखना चाहिए कि उसका सिंबोलिज्म कहां आता है। तो ये मुद्रा जो है, एज ए सिंबॉलिक representation that from the grosser aspect of your existence you are leading yourself to the subtler and subtler aspects. और ये बताते हुए जो है, ये बात को यहां पर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और एक बात, हठ प्रतिपिका के अंदर ना नाड़ी शुद्धि में इसका एक्सप्लेन हुआ, ना शुरुआत में जब प्री रिक्विजिट्स बताए गए उसमें एक्सप्लेन हुआ। हठ प्रतिपिका में इसका एक्सप्लेनेशन आता है सीधा भस्त्रिका प्राणायाम में। भस्त्रिका प्राणायाम में कहा गया है कि आपको ये तर्जनी और मध्यमा का इस्तेमाल न करते हुए आपको थंब एंड द लास्ट टू फिंगर्स यू हैव टू यूटिलाइज फॉर दिस पूरक एंड रेचक। ओके, सेड एंड डन। अब यहां पर लिखा हुआ ऑल्टरनेटिंग द नॉस्ट्रल प्रैक्टिस, प्राणायाम अगेन एंड अगेन। आफ्टर पूरक होल्ड द टू नॉस्ट्रल्स विद द थंब एंड द लिटिल एंड द राइट फिंगर्स, रिंग फिंगर्स नॉट राइट फिंगर्स, वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है। Not using the middle and the index finger so long as the breath is restrained. अब कैवलधाम ने कोई एफर्ट्स नहीं डाले कि इसके पीछे क्या रीजन होगा, क्यों ऐसे किया हुआ है, ऐसे क्यों कहा कि भाई आप इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को यूज ना करो। इसका कोई एक्सप्लेनेशन यहां पर हमको नहीं दिखता। एनीवेज, आगे के श्लोक में ये क्लैरिटी आ जाती है कि सगर्भ और निगर्भ क्या है। प्राणायामो निगर्भ अस्तु विना बीजे न जायते, वाम जानु पर्यन्यस्तम वाम पाणी तलम भ्रमेत, एक दिशत पर्यंतम पूरक कंबक रेचकम। द निगर्भ प्राणायाम is performed without the repetition of the bija mantra. And what is said? वाम जानु परि अन्यस्तम, यानी लेफ्ट का जो आपका नी है, घुटना है, उस पे अपनी हथेली रखते हुए वाम पाणी तलम भ्रवेत, रोटेट द लेफ्ट palm placed on the left knee. Puraka, Kumbhaka and Rechaka may cover the time taken by such rotation from once to 100 times. Ekadishata paryantam पूरक कुंभक रेचकम। अब आप ये काउंटिंग करो, 16 plus 64 is 80, 80. 80 plus 32 is 112, और यहां पे लिखा हुआ है 100 टाइम्स। तो कहीं ना कहीं द क्लैरिटी इज कमिंग टू अस कि इन दैट 100 we should consider 112 only. तो the पूरक is 16, तो 16 टाइम्स आपने अपने पाम को जो है लेफ्ट नी पर रोटेट किया। लेकिन कब हम ऐसा रोटेट करते हैं? जब आप निगर्भ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। निगर्भ यानी मंत्र का मन ही मन उच्चारण न करते हुए आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो उस समय तुम्हें मात्रा की गिनती कैसे करनी चाहिए? So he literally says by rotating the palm on the knee, and then goes on to say that the Puraka, Kumbhaka and Rechaka should be done in this manner. इसमें एक सवाल और उठता है कि यहां पर लिखा 1 to 100 times, तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि as many times as you are doing the Puraka, Kumbhaka and Rechaka, क्योंकि एक साइकिल में
अगर हम 16, 64, 32 का काउंट करते हैं तो दैट इज ओनली वन वे. व्हाट अबाउट द अदर वे? तो इट विल बिकम 224, बिकॉज एक तरफ से आपने 12 अपना सॉरी 16, 64, 32 किया तो 112 हो गया, लेकिन जब दूसरी तरफ से आप करेंगे तो फिर से उतना ही होगा. तो शायद हो सकता है कि ये अनुलोम विलोम के अंदर ऐसे बताया गया, लेकिन बाकी दूसरे जो प्राणायाम आप करेंगे उसमें तो इतने काउंटिंग तो होंगे नहीं ना. उसमें सिर्फ एक तरफा ही होगा, पूरक, कुंभक और रेचक ही होगा. दो तरफ से ऑल्टरनेट करके हमको साइकिल कंप्लीट करने वाली बात नहीं आती है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग फ्रॉम वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू and clarify ourselves कि how this explanation here from 1 to 100 times is mentioned. और फिर उसके हाँ बोलिए. Sorry, भाई, by the way, अगर हम if we use the other hand, left हाँ, hand, हाँ, or holding nose, then what are the हाँ, implications? नहीं, it is not advised to use, Correct. because always we are supposed to use uh, the right hand only. क्योंकि जो right hand का thumb है ना, it is used to close always the सूर्य नाड़ी. अगर आप लेफ्ट हैंड से करेंगे तो इट विल क्लोज दी चंद्र नाड़ी. तो वो जो है बात आ जाती है. और ये जो लास्ट 2 फिंगर्स है, हम ऐसे करते हैं तो हम चंद्र नाड़ी को बंद करते हैं, लेकिन जब अगर कभी हम लेफ्ट हैंड से करेंगे तो इट विल बी दी अदर वे. तो दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट यू शुड अवॉइड यूजिंग द लेफ्ट हैंड. फिर एक बच्चे ने सवाल किया कि सर ऐसा समझो कि मेरा राइट हैंड है ही नहीं, तो क्या मैं फिर नहीं करूं? तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. You can use your left hand for doing that, but at the same time the logic of that hand and relation to your nose will become completely reversed, because now your left hand is doing all the activities of the right hand. जितना भी कार्य अभी आप लेफ्ट हैंड, क्योंकि आपका राइट हैंड तो है ही नहीं ना भैया, अब वो कार्य में ही नहीं है या फिर है ही नहीं. तो फिर आप जितने भी कार्य कर रहे हो, जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हो, जितने भी साइन सिंबल्स या जो कुछ भी डायरेक्शन आप दे रहे हो, वो कौन सा हाथ इस्तेमाल कर रहे हो? लेफ्ट हैंड. तो नाउ द लेफ्ट हैंड इज डूइंग ऑल द रोल्स ऑफ द राइट हैंड. सो यूजुअली यू शुड कंसिडर देयर द लेफ्ट हैंड as applicable to do that purak, kumbhak and rechak, and the right hand is not there. You have to assume it that way. तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हो. लेकिन अगर राइट हैंड है और फिर भी आप लेफ्ट हैंड यूज करते हैं तो इट इज सेड दैट यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग. दैट मे गो अगेंस्ट द थिंग. 1 सेकेंड. हाँ, yes, coming back. Sorry. So Dr. Vasant Lart, who is a very famous Ayurveda exponent. So somebody asked him that question. So he's reputed as said that doing from left hand may actually lead to insanity. Oh, हाँ. अच्छा. तो maybe this is जो आपने कहा कि भाई या तो ये है कि थंब से सूर्य नाड़ी अगर हमेशा करनी होती है तो या तो थंब राइट, क्योंकि ये राइट और लेफ्ट भी तो नाड़ियों से रिलेटेड है ना. एग्जैक्टली. कि ये क्रॉस करंट बन सकता है, तो दैट में लीड टू टर्बुलेंस इन द माइंड. और दूसरी बात ये है कि सेइंग इंसेनिटी इज रियली व्हाट इज इट इज वेरी ग्रीवियस, बिकॉज इंसेनिटी का मतलब क्या हो गया? तुम्हारी समझबूझ पूरी खत्म हो जा रही है. हाँ, करेक्ट. तो इट्स अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट बट हाँ, डेफिनेटिव स्टेटमेंट बाय हिम. हाँ. नहीं, तो लेकिन वहां पर कैसा होता है सुनील भाई, हमें ये जानना चाहिए कि उसका कुछ रिलेटिव रेफरेंस है क्या, उसका कोई मतलब एक्सप्लेनेशन है क्या कि बाय हाउ इट इज गोइंग टू टेक यू टुवर्ड्स इंसेनिटी. अब एक बात बोलता हूं. अ पर्सन हु इज supposed to do pranayam and after doing 10 cycles with the right hand becomes tired and asks, सर मेरा ये राइट कंधा दुख रहा है, तो क्या मैं लेफ्ट का इस्तेमाल करूं? तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसको स्ट्रिक्टली ऐसे नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं राइट से ही करो. तो मैं कहता हूं क्यों राइट से क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो कहता है कि सर अभी यहां पर दर्द हो रहा है.
अच्छा दर्द हो रहा है तो उसको आराम दो, लेफ्ट का इस्तेमाल करो, क्योंकि नाउ योर लेफ्ट विल बिकम राइट। सी दिस। और कोई भी हरकत हो, खाना पकाने से लेकर ड्राइविंग करने से लेकर, अगर आपका राइट हैंड इस्तेमाल करने के लायक नहीं है या वो कोई परेशानी से गुजर रहा है, ऑब्वियसली यू विल यूज योर लेफ्ट हैंड। अपने नहीं, मुंह में निवाला डालने तक यू विल यूज योर लेफ्ट हैंड। लेकिन क्या होता है ना कि अगर सपोज नहीं है राइट हैंड, तो बॉडी में शायद कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस हो जाते हैं। जैसे आंख अगर नहीं होती तो जो अंधा आदमी है वो बाकी सेंसेस से स्ट्रांग हो जाता है। हाँ स्ट्रांग हो जाता है। तो सो ना होने का बात अलग है, फिर तो बॉडी में ऑलरेडी चेंजेस हो रहे हैं, पर राइट हैंड होते हुए अगर हम नहीं यूज करके लेफ्ट हैंड कर रहे हैं, तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा, इट्स समथिंग वर्थ एग्जामिनिंग आई फील, कि भाई जैसे आपने कहा कि हमेशा थंब को राइट सूर्य नाड़ी को प्रेस करना चाहिए, क्यों? व्हाट इज इट अबाउट द राइट थंब जो कि सूर्य नाड़ी को प्रेस करना ही चाहिए? दैट्स अ अग्नि अग्नि क्वेश्चन। अग्नि तत्व का ये है ना वहां पर कनेक्शन। नहीं, लेकिन वो तो लेफ्ट थंब में तो अग्नि तत्व का होना चाहिए ना। होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम लेफ्ट थंब आपका राइट नॉस्ट्रिल की तरफ नहीं जाता है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं जाता हाँ है। मैं कह रहा हूँ थंब तो थंब भी है ना। अगर थंब हाँ एसोसिएटेड अग्नि से, सपोज हाँ जो है ना ये जी चारों 5 फिंगर्स 5 एलिमेंट्स है, अगर थंब एसोसिएटेड अग्नि से, तो थंब तो हाँ। लेफ्ट राइट, तो थंब भी है। बट व्हाई इज इट कि लेफ्ट थंब क्यों नहीं सूर्य नाड़ी से That is always going to be a topic of, what you say as a proper argument, or you can say वो उसके पर हम तर्क कर सकते हैं। नहीं बट रिसर्च कर सकते हैं इसमें, मेरे को हाँ, लगता है। इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एंड करना भी चाहिए। और ऐसा कहीं पर भी हमको कुछ रेफरेंस नहीं मिलता, यहां तक कि किसी भी टेक्स्ट बुक में इसके ऊपर कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने इसके ऊपर बहुत कोशिश की है समझने की, अलग अलग टीचरों से बात की हुई है, लेकिन किसी के पास भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आता। तो जो राइट वायबल जो थिंग जो मुझे मिली, दैट वाज ओनली दिस थिंग, कि हाउ द साइंस ऑफ मुद्रास मेक्स अस अंडरस्टैंड द थंब एज द एलिजिबल, यू कैन से फिंगर और द थंब टू यूज एट द राइट नॉस्ट्रिल। और ये वैसे अब 5 हाँ, किससे एसोसिएटेड है? 5 एलिमेंट्स से क्या क्या कॉरेस्पॉन्डेंस है? ये अग्नि है, हाँ जी। और ये जो बीच वाले जो दो हैं, ये अर्थ और आपका वाटर हो गया, और ये लास्ट के जो दो हैं वो एयर और स्पेस से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं ये बात ऐसा लगता है कि ये कनेक्टिविटी है, लेकिन ऐसा कुछ जैसा मैं कह रहा हूं ना कि देयर इज नथिंग, नो स्टडी एज सच, इट इज जस्ट द बिलीफ सिस्टम। अच्छा, अब ये जब बिलीफ सिस्टम की बात आ गई ना, तो ये गुरुजी कहते थे, गुरुजी क्या कहते थे कि ऑलवेज अंडरस्टैंड, एज यू थिंक इट इज सो, एज यू थिंक इट इज सो। तुम्हारी सोच जैसी है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही होता है, और इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है, हकीकत है ये। बिकॉज वी कैन सी हाउ आवर मोटिवेशन is going to lead us towards something that we achieve when you have that belief that I can do it. When you have that belief that I can do it, then in spite of initial failures also, you will find that eventually you are achieving it. लेकिन एक बार आपके मन में ये बात आ गई कि नहीं, मेरे से ये नहीं होने वाला है, आई एम नॉट एबल टू डू इट, आई कैनॉट डू इट। अगर आपके मन में एक बार ये बात बैठ गई, तो आप कितने भी एफर्ट्स डालो, अगर आप कर भी सकते होंगे ना, तो आपका बिलीफ सिस्टम जो है आपको वहां पर फेल कर देता है। तो गुरुजी का एक कहना था कि योग के अंदर जो है ना, हमेशा अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने इंस्टिंक्ट्स को यूज किया करो, नॉट दी रिजिडिटी और दी रेगुलेशन ऑफ व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज टू बी डन। ये अपने अपने प्रांत से आए हुए अलग अलग गुरुजनों का अपना अपना सिद्धांत है, और वो अपने हिसाब से अपने को बताते हैं, वो अपनी जगह पर गलत नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे मन में ऐसे कोई डाउट आ जाए, और तुम अगर कभी ये सोचने लगो कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता,
कि मैं राइट हैंड का थंब यूज करूं या लेफ्ट हैंड का थंब यूज करूं. आई एम डूइंग इट फॉर द रेगुलेशन ऑफ माई नाड़ी, देन इट डजंट मैटर्स एट ऑल. लेकिन ये जो है ना, ये अगेन, ये सपोज फूड पे भी बड़ा वो होता है, खाने पे भी, कि भाई इतना ज्यादा खाने पे क्या आप फस करते हो, जो प्लेट में आए वो खा लेना चाहिए. यस, दैट इज राइट, वो आपको न्यूट्रिशन देगा. बट जब आपकी साधना बहुत अच्छी हो जाती है, जब आपका मन के ऊपर संतुलन हो जाता है, तब ये अप्लाई करता है. इन द इनिशियल स्टेजेस हमारे में इतनी शक्ति नहीं होती कि भाई हमारे थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम जो है डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाए बिहेवियर के अंदर. नहीं तो अब ये है ना कि अब सपोज हमने घास दे दी थाली के अंदर, तो क्या घास खा के भी हम न्यूट्रिशन ले पाएंगे? हमारी बॉडी इस तरह बिल्ट नहीं है ना. या कुछ नहीं खाया, भाई सिद्ध योगी है तो कुछ नहीं खा के भी वो तो अपना सटल ब्रीदिंग कंटिन्यू रखेंगे, मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा. हमने देखा ये कितने ही योगियों ने अपना अंडरग्राउंड रह के सालों तक सस्टेन किया है अपने आप को. बट मेरा ऐसा कंटेंशन है कि दिस पावर ऑफ बिलीफ अप्लाइज ओनली इन द लेटर स्टेजेस ऑफ साधना, व्हेन यू नो कुछ थोड़ा आपने बिल्टअप कर लिया है अपने ऊपर कंट्रोल, मैंने योग में कुछ थोड़ा प्राप्त कर लिया है, ओनली देन इट अप्लाइज. इन द इनिशियल स्टेजेस, और ये सब प्रश्न इनिशियल स्टेजेस में ही आते हैं. अगर आपके एक्सपीरियंस इतना बिल्टअप हो गया तो प्रश्न आएंगे ही नहीं आपको. जैसे आपने कहा, इंट्यूशन या इंस्टिंक्ट ही आपको बता देगा, आपको प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है. सो दिस स्टिल रिमेन्स अ वैलिड क्वेश्चन. व्हाई द राइट एंड व्हाई नॉट द लेफ्ट इज व्हाट आई फील. नहीं, I will just make sure that I need to find out this in some research. कुछ ना कुछ तो हुआ होना चाहिए, मुझे फिर से एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने ये सारे रिसर्चेस किए, ढूंढने की कोशिश की कि कहीं इसके ऊपर कोई स्टडी हुई है क्या. बट नाउ एज यू आर सजेस्टिंग, वी शुड डू द relationship of this Anguli Mudra or Pranava Mudra in relation to Purak, Kumbhak and Rechak. See, there may be something. अच्छा, ये वाली बुक के अंदर है लाइट ऑन प्राणायाम जो है गुरुजी की, हाँ, इसमें चैप्टर 26, अच्छा, ओके, चैप्टर 26, हाँ, ओम प्राणायाम देखिए. अच्छा, उसमें दिया हुआ है. ओके, है ना, दिख रहा है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. ओके, तो ये अब घेरण मुनि का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे सामने तो क्लियर हो गया. एक मिनट, हाँ, यस यस, the जी, reason we use right or left I don't know, but the reason we use these fingers, हाँ. जैसे क्लास में कोई स्टूडेंट पूछता है why do we use only the thumb and the last two fingers, so what would be the answer according to you? That's what I gave earlier. I think you were not there then. No, I heard but everything. What was it? Because of the Agni, right? You said. हाँ, Right? yes, you are. हाँ, तो ऐसे हमारे इंस्टीट्यूट में भी ये प्रश्न पूछते हैं कि why right hand or left hand, no, but why these fingers are used. The reason is that if you want to hold something, you will not hold it like this. अच्छा, करेक्ट. इसमें है ना, मतलब अगर आपको कुछ भी पकड़ना है तो आप ऐसे पकड़ेंगे, बिकॉज ये दो फिंगर्स में बहुत सारी ताकत होती है. राइट. अगर आप ऐसे पकड़ेंगे, you can't balance it. So the उसमें pressure ताकत है. on the nostril is very less when you have this mudra. The pressure on the nostril is very less. But if you hold this, like some people insist on doing this, तो इसमें प्रेशर बहुत हो जाता है. राइट. तो कम प्रेशर के लिए हम ऐसे यूज करते हैं. कुछ भी हम वस्तु पकड़ने के लिए हम ऐसे तो नहीं हाथ करते हैं, यूज दिस. दैट इज वन plausible. That is very logical actually. मतलब हमारे practical point of view से देखा जाए तो this is very eligible. Yeah. हाँ. और वो जो मैंने जो बताया ना, that was like you know the grosser level of the things like you know earth element and water element are not brought into consideration, and you are using the lighter. हाँ. Correct. That's also a good explanation. But for a normal साधारण व्यक्ति के लिए जिसको ये वायु, अर्थ, ये सब एलिमेंट्स भी नहीं पता है, आप किससे पूछेंगे ना व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स, दे डोंट नो. They don't know. दिस शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध किसको पता ही नहीं है, सोचते रहते हैं. तो ये थोड़ा this is very logical. किसी भी कोई भी टेक्निक रोबस्ट तभी होती है
जबकि वो प्रैक्टिकली भी it improves itself and is also backed by a correct theory. So in this case, from practice standpoint, बिल्कुल सही बात है कि भाई ये प्रेशर कम होता है और बिल्कुल दुरुस्त है. So that's 50% of the part solved. Further 50% is what is the theoretical explanation behind it. क्योंकि आज देखिए, आज जो स्टूडेंट्स हैं, और मेरे से ज्यादा तो शायद आप डील करते हैं, स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी लॉजिकली माइंडेड, हाँ, है ना. कभी कभी तो उनके सवाल हमारे को मजबूर कर देते हैं ज्यादा पढ़ाई करने के लिए. कि वो श्रुति युक्ति अनुभव 3 डायमेंशंस में, तो श्रुति में सुन लिया, लेकिन द नेक्स्ट स्टेप वो लॉजिक लगाते हैं, एंड अनलेस द लॉजिकली दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे विल नॉट रियली गो ऑन टू अनुभव. So today, this is a necessary but not a sufficient condition. Logical rigor is necessary for practice, though not sufficient. केवल logically होगा, there may be other factors which may prevent the person from practicing. But other factors favorable हुए, पर logical अगर explanation नहीं मिला, तो भी इंसान hesitate करता है. ऐसा मेरा छोटा मोटा observation है. नहीं, आप जो बोल रहे हैं सही है, but also you see this attitude of sticking over to one aspect कि यही ऐसे क्यों, until that problem is not solved, holding on to it and not proceeding also is not a right habit. Sometimes we have to discourage the students and say कि let's continue with whatever faith you have. Then as we keep practicing it, then we will find some solution, because if you get stuck up, then you can never move ahead. Many a times when this question is asked, what I say, see, even I am searching for the answer of the same. True. But why I follow it? It is said in the textbook. It is traditional, and we should follow it. Correct. So that is the one reason which I give, and we go ahead. जो सामने वाले स्टूडेंट को वो बात हजम नहीं होती इतना आसानी से. पर फिर वो प्रैक्टिस नहीं होगी ना, मन में तो हमेशा डाउट होगा, मैं क्यों कर रही हूँ, and then that practice will never happen. And that doubt has to be dropped. नहीं तो वो डाउट को लेके चलेंगे तो benefit will not be there. Exactly. And also when you do a certain thing, you need to have a whole perspective. Have we studied the Hatha Yoga so deeply that we? Not yet. कभी भी we cannot say कि we have studied it completely. Because it takes a lifetimes probably to understand. So all answers can't be given. Though the question will come in the mind. मेरे मन में भी तो ये आया था, why this hand, why this finger? आंसर तो देना पड़ेगा ना स्टूडेंट को. अगर हमारे मन में आता है तो स्वाभाविक है कि दूसरे के मन में भी आएगा. Exactly. The thing, टेम्पर जो है आज सोसाइटी जो है, for good or bad scientific oriented है. By the way, logic doesn't prove anything at all. Logic तो मतलब कितने सारे वो लॉजिक की जो fallacies हैं वो भी तो stated हैं. So लॉजिक से कुछ भी प्रूव किया जा सकता है, like statistics, right? But the thing is, for right or for wrong, जैसी सोसाइटी आज है, people like to proceed logically. As in, वो बिल्कुल बात तो सही है कि अगर हम लॉजिक में अगर हम डूबते रह जाएंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लॉजिक काउंटर लॉजिक ये सब में फंसे रह जाएंगे. सो रियली स्पीकिंग किसी भी तरह हमको अनुभव के तल पे पहुंचना है, बट एज वी एक्सप्लेन, इट इज दिस फॉर स्टूडेंट टू टीचर पर्सपेक्टिव. अगर हम सिखा रहे हैं, देन वी मेक एन एफर्ट कि हमको प्रैक्टिकली क्या सही है और थियोरेटिकली उसका सपोर्ट अगर होगा, then the student has a much better chance of proceeding on to experience quickly as opposed to logically थोड़ा सा अगर वो. That's all. आशुतोष सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था सर कि जब हम कहते हैं कि थियोरेटिकल भी है इस चीज का, जैसे अभी सुनील जी कह रहे थे कि इसका थियोरेटिकल बेसिस क्या है, तो इसके लिए हमें ये पहले सोचना पड़ेगा कि हमारा दृष्टिकोण क्या है. ये शरीर अलग है और मन अलग है, या शरीर और मन एक साथ चलते हैं. तो मुझे ये लगा कि ये जो अभी 3-4 हमने जो श्लोक पढ़े हैं, where sattva raja tama is associated with
I mean, Rajas is associated with Purak and with Kumbhak and उदाहरण है कि बॉडी माइंड यूनिटी और ये अगर रवैया है, I mean that is the basis on which this whole work is constructed. Then अभी so Rajas is the principle of action and Sattva is the principle of awareness. ऐसे भी हम देख सकते हैं और फिर ये तो अनुभव करना पड़ेगा. ये थियरी है, इसके पीछे जो लिखा है इस श्लोक में वो तो थियरी है, लेकिन ये बिना अनुभव किए कैसे हम समझ सकते हैं इसको. तो मुझे लगा कि the theoretical basis has been explained in the verse itself, but unless it is experienced, it will not be understood or it will not be realized. तो ये मेरा एक जस्ट कमेंट था जो सुनील जी पूछ रहे थे कि इसका थियोरेटिकल बेसिस यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है. Yes, sir. I have run out of my this thing. इसका जो चार्जिंग होता है वो कम हो गया है. So now I am directly speaking on this speaker system. Are you all able to hear me? Yes. Yeah. Thank you. So Ashutosh sir, your views are great, and it is the matter of experience, as you are saying. So let us do the experience and then come to the conclusion, rather than on the theory basis commenting and making it more and more, not complicated as such, but at the same time giving it more versions of belief system. But तो ये जो चीज हम लोग तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज रियली ए पॉइंट ऑफ स्टडी दैट वी कैन डू. एंड यहाँ पे यहीं पे जो है ना मेरे लिए 2-3 टॉपिक्स मिल गए कि आई शुड डू सम रिसर्च and try to write down some research papers as a research scholar, to make people understand where we are heading to. And somewhere this textbook will help us in that way, and our discussion will also help, because this discussion will really matter. When we go through such kind of discussions, we make out certain beautiful sentences through which we can relate our thinking ability. और ये इसमें कोई शक नहीं है कि जब कोई भी विषय के ऊपर चर्चा होती है तो उसके ऊपर कोई ना कोई निष्कर्ष आगे जाके निकलता जरूर है. There is no doubt about that. But at the same time, the last point which Ashutosh sir made, कि हमको इसको practically जब तक हम experience नहीं कर सकते, we will not be able to make the comment out of it. So nicely said and done. Let us go ahead for the next one. अब ये जो next जो श्लोक है, the 55th one, it is telling us about adhama, madhyama and uttama sadhak. So when it is making us the clarification of the use of ratios there for adhama, madhyama and uttama, if you see, uttama vyunshati matra, madhyama shodashi smrta, adhama dwadashi matra, प्राणायाम त्रिधा स्मृताहा. प्राणायाम जो है 3 लेवल पर प्रैक्टिस किया जाता है, और उसमें क्या बताया कि इट इज 20, 80 and 40, that is the ultimate one, uttama, of higher standards, highest type. Then comes the moderate pranayama, which has the 16, 64 and 32 matra. Then comes the lowest type of 12 matras, 12, 48 and 24, which makes us understand कि at the adhama level, अब हम हमारे लेवल पे से याद है कि we start with 4, तो 12 का भी 1/3 है. Now, वो लोअर लेवल पे आने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी.
फिर मध्यम लेवल पे आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे आशुतोष सर ने अभी यहाँ पर पिन पॉइंट किया कि द एक्सपीरियंस विल मेक अस अंडरस्टैंड, द रेगुलर प्रैक्टिस विल मेक अस अंडरस्टैंड, दैट इज ट्रू, नो डाउट अबाउट, देयर इज नो any kind of objection to it. The moment from 4 to 12 we will come, there will be many realizations itself. और ऐसा कई ग्रंथों में, यानी ये हिरण्य संहिता में भी लिखा हुआ है, हठयोगिका में भी लिखा हुआ है, प्रश्नोपनिषद में भी लिखा हुआ है, ऐसे कई और दूसरे उपनिषद भी हैं जहां पर प्राणायाम की इन बातों को जो है दर्शाया कि द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू रियलाइज द डीपर एस्पेक्ट्स of internalization. Now we are more associated with the external things. और हम सिर्फ वो इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन हमने एक्सपीरियंस तो नहीं किया। अब एक्सपीरियंस जब हम करते हैं तो दैट विल लीड टू सम ग्रेट व्हाट यू कैन से अचीवमेंट्स इटसेल्फ। और वो आगे का जो श्लोक है ना, उसमें ये भी बताते हैं कि भाई इसके सिम्टम्स क्या है। अगर लोअर लेवल की प्रैक्टिस होने लगती है तो उसके सिम्टम क्या है, मिडिल लेवल पे आप पहुंच जाते हैं उसका सिम्टम क्या है, और हायर लेवल पे आप पहुंचते हैं तो उसका सिम्टम क्या है। सी ही सेज अधमा जायते घर्मो मेरु कंपश्च मध्यमात् उत्तमाच्च भूमि त्याग स्त्रीविधम सिद्धि लक्षणम। ये सिद्धि के लक्षण है। These are the signs of success. Now what are the signs of success in pranayama? They are characterized by experiencing warmth in the lowest type of pranayama, and the moderate one gives rise to kampan, that is tremor, particularly in the spinal column, while the highest type of pranayama leads to bhumi tyag. भूमि त्याग का मतलब ये होता है कि आप जमीन को छोड़कर उसके ऊपर जाने लगे, यानी the grosser elements are no more effective on holding you on to that gravitational pull on the floor, rather you are getting levitated, and this is where you are making the progress in pranayam practice, or you can say literally in yoga. और इसके बाद वाला जो श्लोक है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू सी प्राणायामात् खेचरत्वम प्राणायामात् रुजामहति। खेचरत्वम का मतलब क्या हुआ? एबिलिटी टू मूव इन द एयर और इन द स्काई। व्हाट इज द रुजामहति? रुज मीन्स डिजीजेस, हति मीन्स overcoming the diseases. प्राणायामात् शक्ति बोध, यानी कुंडलिनी शक्ति का आपको बोध होने लगता है प्राणायाम के अभ्यास से। प्राणायामान मनोन्मनी, यानी you are experiencing the state of मनोन्मनी, which is said to be like, taking you towards samadhi. आनंदो जायते चित्ते प्राणायामी सुखी भवेत्. So with that practice of pranayam, the chitta, now what your chitta comprises of? Manah, buddhi and ahankar. All these three come to the state of ananda, and that ananda we have to link it with that experience of calmness, with that experience of peace and harmony, with that experience of bliss which we talk about. So anando jayate chitte, the whole chitta is coming to that aspect, and the one who is practicing it becomes happy, or you can say peaceful. So this is what not only this Anulom Vilom or Sahit Pranayam is capable of, but every other pranayam is capable of bringing that change. Here one note is given for shlok number 57 by Kaivalyadam. I will just read it out for you. Pranayama has far-reaching effect both on the body and the mind. As per Hatha Pradipika, the second chapter, 38th shloka tells us that it purifies the body, and as such is a substitute for
Shatkarma. In the present words, its effects on the mind and the consequent miraculous power are described. The aim of all the types of pranayama is to wake up the dormant kundalini. Even in Shiva Samhita, the second chapter 58 to 64, it describes the effect in detail. Pranayamic exercises or practices are to be done with concentrated mind, which leads to Unmani Avastha. So this is how we are understanding the effect of pranayama. अब वो आगे कहते हैं, I have explained to you what is Sahita. Let us go ahead and understand Surya Bhedana. Kathitam Sahitam Kumbham Surya Bhedanatam Shrunu Purayet Surya Nadaya Cha Yatha Shakti Bahir Maru Dharayet Bahu Yatnena Kumbhakena Jalandharaihi Yavat Svedam Nakakeshabhyam Tavat Kuruvantu Kumbhakam. So, having understood the Sahita Kumbhaka, now listen to Surya Bhedana. Let the air be taken in through the right nostril. Which air? The external air. According to your capacity and with great effort, retain it by means of Jalandhara Bandha. Continue the Kumbhaka till the hit is felt right up to the tips of the nail and the roots of the hair. अब ये सेम एक्सप्लेनेशन जो है हमको प्रतिविका में भी मिला हुआ है कि you should retain the Kumbhaka unless you feel the tension in the root of your hairs and the tip of the nails, and that is known as Surya Bhedan Pranayam. और अगला जो श्लोक है वो इसका रिजल्ट बता रहा है. प्राणो अपानः समानश्च उदान व्यानौ तथैव च सर्वे ते सूर्य संभिन्ना नाभि मूलात् समुद्धरेत ईडया रेचयेत पश्चात् धैर्येण खंड वेगतः पुनः सूर्येण च आकृष्य कुंभयित्वा यथाविधि. अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बातें ये दोनों श्लोक में बताई गई है, 60 and 61. प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये पंच प्राण के नाम यहां पर ले लिए गए. यानी ये पंच प्राण हमारे शरीर में कार्यरत है. और क्या कहा गया? सर्वे ते सूर्य भिन्ना. They are all connected to the right nostril. See, this point is to be noted here. Pran, apan, saman, udan, vyan. They are all connected to the right nostril. Nabhi moolat samuddharet. From the root of the navel, they should be raised up. Now, the root of the navel is obviously somewhere around the navel only. But most of the time in different explanation, it is said right from Mooladhar to Swadhisthana up to Manipura region. This is said to be the base of the practice of pranayama. And that is the reason that the application of Moola Bandha, Udyan Bandha carries lot of importance to raise this Vayu upward. Whether it is Apan Vayu, whether it is Saman Vayu, or whether it is the what you can call as Pran Vayu itself leading it towards the Udana, which along with Vyana raises up and goes up. So here, आशुतोष सर आपको कुछ कहना है? हाँ, मुझे पूछना था सर. हाँ बोलिए. ये जो पांच वायु है, हाँ, इनमें से हम कुछ तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर के जो वायु है उनको हम क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनुभव कर सकते हैं. हमारे योग सूत्र में तो लिखा हुआ है कि दिस वायुस आर कनेक्टेड विद द एलिमेंट्स. इवन सांख्य कारिका, अब जब हम सांख्य कारिका पढ़ेंगे ना, तो सांख्य कारिका में भी ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है
how this prana is associated with the consciousness and how with the elements it is connecting. So in the different parts of our body, the lower is Prithvi, above that is Jala, above that is fire, above that is air, and above that is space. So space is coming to here. Now when you are experiencing the Pancha Prana and the regulating of the same with our Anulom Vilom ya Purak Rechak, Purak Kumbhak Rechak, ab jo bhi bolo pranayam se, you will find that each and every Vayu is clearly identified. और उसका आइडेंटिफिकेशन फिजिकल सिम्टम्स क्या है? जहां आपके शरीर से मूत्र और पुरीश यानी the stool, that means the waste product that is being produced by the body because of our exposure to the external environment, or when that is going on reduce, it is said that you are having a great control on the apan vayu. तो एक सिम्टम जो अपान वायु के ऊपर जो कंट्रोल आने वाली जो बात है, that is this only. So the body is going towards the purification. Then there is one more understanding, saman vayu se related. Saman vayu is related with your digestion, assimilation, absorption, and distribution of the nutrients. But now, the moment you feel that you are not feeling hunger, you are not feeling thirst, you are not feeling any kind of other experiences related to the desires of the body, then somewhere your saman vayu has also been taken control of and it is rising upward. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारे वायुओं को हमको ऊपर की तरफ लेके जाना है, ताकि जो कुंडलिनी का बोध होता है उसको हमको राइज करके ऊपर की तरफ लेके जाना है. So this fact becomes very clear. तो प्राण प्राण जो है वो अपान प्राण समान प्राण के साथ में ज्ञान प्राण को लेते हुए ऊपर की तरफ उठने लगता है, और उड़ान का ठिकाना बताया गया थ्रोट से लेकर ऊपर की तरफ. तो when we reach to the level of the throat, it is said that now you are going to excel and go beyond to that higher level planes. So see, this clarity comes with the practice. Your own statement, okay, we need to do the practice and experience the effect of the same. And believe me, this has been mentioned in our text, okay, how with the regular practices this kind of changes can be experienced. And when such kind of changes are experienced, obviously all the Panchvayu can be understood with their responsibilities or with their functions, and how the functions are becoming more and more reduced, and they are going towards the spiritual aspect or subtler aspect of our existence. That way you can connect to it. Are you getting it? Are you getting the clarity of the same? Yeah. और ये 60 सेकंड वाला श्लोक पढ़कर जो है हम रुक जाएंगे. It says, रेचयित्वा साधयित तु क्रमेण च पुनः पुनः कुंभकः सूर्य भेदस्तु जरा मृत्यु विनाशकः. Along with बोधयेत् कुंडलिं शक्तिं देह अग्निं च विवर्तेत् इति ते कथितं चंड सूर्य भेदनम उत्तमम. यानी उन्होंने कहा कि ये सूर्य भेदन प्राणायाम जो है उत्तम प्राणायाम है, और हमको इसका प्रैक्टिस सिर्फ इसीलिए नहीं करना चाहिए कि ये हमको पूरे पंच प्राण को कंट्रोल में लाते हुए, उसका एहसास कराते हुए, कुंडलिनी का बोध कराते हुए, देह की अग्नि को बढ़ाते हुए ऊपर की तरफ ले जाता है. बट इट सेड दैट प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, all these are connected with Surya Nadi and in the navel and connected with right nostril. Inhaling through the right nostril, the yogi should raise them from root of the navel and then exhale by the left nostril carefully, having retained the air in the manner prescribed. Let him exhale. This process should be repeated. The Surya Bhedana Kumbhaka prevents Jara Mrityu Vinashakaha, prevents old age and death, awakens the Kundalini Shakti, Kundalini Bodhaka, increases the heat of the body. Thus have I, O Chanda, explained to you the excellent Surya Bhedana Pranayama. So this is how we have understood the whole theory about Surya Bhedan, and the difference can be noted down from Sahita Kumbhaka
to Surya Bhedan. In Sahita Kumbhaka, it was alternate nostril, which we called as Anulom Vilom, and Surya Bhedan is inhaling through the right, retaining the breath in, exhaling through the left, and as you have exhaled through the left, you are closing the left and going through the repetition through the right only. Inhalation is always through the right. So this is what we have understood from the Surya Bhedan Pranayama. I think we missed We the will 60th. yes. We missed the 63rd shloka in Sanskrit. We've gone on to do the English for 60 to 63. No, we read it. Bodhayet kundalim shakti deh agnim cha vivardayet. Okay. Iti te katitam chanda surya bhedam uttamam. This is the uttama pranayama, which leads us to that experience of knowing the kundalini, having both of the same, and then increasing or improving upon the deha agni. And at the same time, it is said that we are getting the understanding of all the prana which are all associated with the right nostril. एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा, सर अगर कभी ये पंच प्राण अगर सब के सब सूर्य नाड़ी से ही कनेक्टेड है, तो चंद्र नाड़ी का रोल क्या है इसमें? One clear understanding which we have in our anatomy and physiology, and in physiology we study in the nervous system the feedback mechanism, और वो feedback mechanism में autonomous nervous system में हम पढ़ते हैं the positive feedback and negative feedback. तो positive feedback is always acceleration, और सूर्य नाड़ी का काम ये है कि जितनी भी हमारे जो पंचप्राण है उसको एक्सेलरेट करना, बट एट द सेम टाइम एक्सेलरेशन को मैनेज भी तो करना है, तो एक्सेलरेशन को मैनेज कैसे किया जा सकता है? And that is where the role of Ida Nadi comes in, the left nostril, and the left nostril does the work of parasympathetic nervous system. तो अगर right nostril sympathetic है, parasympathetic is like controlling all those actions which are induced by our right nostril, and that is where it is not less important. In fact, it is equally important to that of the right nostril. तो जो हमारा central nervous system, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये जो हमारे नर्वस सिस्टम की जो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, यहाँ पर एक क्लैरिटी हमारे सामने रख दी जाती है, हाउ वी नीड टू नो द एस्पेक्ट ऑफ दिस क्लैरिटी, द रोल ऑफ इडा एंड पिंगला इन डूइंग ऑल द प्रैक्टिसेस. तो किसी ने पूछा, सर फिर कुछ प्राणायाम ऐसे भी तो हैं कि हम दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं और दोनों नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते हैं. एग्जैक्टली. Even when you are doing through both the nostril, inhalation and exhalation, if you try to understand and go deeper into the study of the amount of air inhaled while doing the purak and rechak while exhaling, you will find that the right nostril is at least 1% higher than the left nostril while inhaling as well as while exhaling. So the role of the left nostril is only management, and the active part of going into the action is related to the right nostril. So this is how we have to understand and continue with the practice. Yes, we stop here. We will go ahead first, do the prayer, and then we can still go ahead with the discussions. Sit erect with your back. Closure of your eyes. Slowly inhale. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.
Gently open your eyes. Yes, friends. Yeah. So, if we can continue with some discussion related to the what we have done related to Surya Bhedan and all, nothing wrong as such. नहीं, तो एक तो ये है ना, पहली चीज तो अगर एक कोई जो रियलिटी है तो पोलर है ना, मैग्नेट में साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज है. For that reason alone, you know, the Suryanari cannot exist by itself unless counterbalanced by a Chandranari. Exactly. Very nice. Good. So, see, so that is the theoretical reason. Now, if that has been understood, then one can go ahead and, you know, in one's experience feel कि भाई अच्छा केवल सूर्य नारी से कोई एक्टिवेट करने से, you know, बॉडी में क्या होता है, हीट जनरेट होती है. वो उसका स्टडी हुआ है. हाँ, उसका स्टडी हुआ है. खाली राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करने से शरीर के अंदर किस तरह से हीट प्रोड्यूस होती है और सूर्य भेदन करने से किस तरह से शरीर के अंदर का जो हीट है वो इंक्रीज होता है. दिस स्टडी हैज बीन डन एंड इट हैज बीन प्रूव्ड आल्सो. तो वन कैन स्टिल गो अहेड एंड एक्सपीरियंस इट एज ए प्रैक्टिस. एक बात, अच्छी बात क्या है कि व्हेन यू आर डूइंग द प्रैक्टिस and even if the heat is getting improvised or increased, please understand it is not that negative heat which is going to harm you. ये भी देखा हुआ है. तो कई बार क्या होता है, कुछ टीचर्स ऐसा कहते हैं कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको सूर्य भेदन नहीं करना चाहिए. ऐसा नहीं है, सूर्य भेदन करना चाहिए, लेकिन उसमें का जो कुंभक फेस है ना वो अवॉइड करना चाहिए. सूर्य भेदन आप करो, खाली पूरक और रेचक करो, and believe me, you will find that in fact your metabolism is improving. The bad cholesterol in the body is taken care of. This is also a study which I am telling you. It is available freely on the internet. If you go to ResearchGate, if you go to academia, if you go to the other research sites, you will find these things available, these research papers available. तो दिस इज द फैक्ट कि हमको जो कुंभक फेस है ना, वो कुंभक फेस समटाइम्स इंक्रीजेस दैट प्रेशर एंड रिलेट्स टू द मैनिपुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर. तो ये दिमाग में रखकर जो है हमको प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहिए. तो व्हाट यू सेड सुनील भाई इज राइट, दैट वी शुड एक्सपीरियंस इट बाय डूइंग द प्रैक्टिस एंड इट हैज बीन प्रूव्ड आल्सो कि वो हीट इंक्रीज करता है. हाँ, अब वो ऐसा कोई जिसका कुंडलिनी जागृत हुआ होगा वो बोलने के लिए तो आएगा कि नहीं कि भाई मेरा जागृत हो गया, और जो बोलता है, जो चर्चा करता है कि मेरा जागृत हुआ, यकीन मानो उसका जागृत नहीं हुआ है. क्योंकि जो चर्चा करे वो हठयोग का पार्टी नहीं है, क्योंकि जो चर्चे में नहीं आता वो एब्जॉर्ब करके एक्सपीरियंस को आगे बढ़ने की कोशिश करता है. एंड दैट इज वेयर द कुंडलिनी बोध इज टू बी अंडरस्टूड. या Chandra Bhedan is the exact opposite of Surya Bhedan, right? see, let me tell you one thing. Chandra Bhedan is not given in any of the practice. Sorry Ashutosh sir, one second. Chandra Bhedan has not been given in any of the traditional text. कहीं पर भी नहीं है. इनफैक्ट कुछ टीचरों का तो ये भी कहना है कि आपने चंद्र भेदन किस बेसिस पे बनाया, कि अगर राइट नॉस्ट्रिल से लेकर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करते तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम चंद्र भेदन करेंगे तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगा. ऐसा कुछ आपका कंसेप्ट है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ यही कंसेप्ट है. देन द रिसर्च हैज प्रूव्ड दैट देयर इज नथिंग लाइक कूलिंग टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ चंद्र भेदन. ये भी आप नोट करो. तो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड चंद्र भेदन, तो फिर किसी ने पूछा कि फिर हमको चंद्र भेदन क्यों करना चाहिए? तो कहा गया कि
राइट नॉस्ट्रिल से जो हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल में छोड़ दिया, उसी को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेकर अगर राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ते तो समवेयर वी विल ब्रिंग बैलेंस. तो इट इज अवर बिलीफ, बट प्रैक्टिकली रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट बीन प्रूव. अब ये और आप और मैं अगर कभी ये बिलीव करेंगे कि सूर्य भेदन करने से अगर कभी अग्नि की वृद्धि होती है जैसे लिखा गया है और जैसे एक्सपीरियंस भी किया गया और प्रूव भी किया गया, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे तो फिर थोड़ा कूलिंग भी होना चाहिए. नाउ दिस इज अ पॉइंट ऑफ स्टडी. देयर इज मोर स्कोप फॉर स्टडिंग ओवर हियर. और इसीलिए ना कई कई जगह पे जो है चंद्रभेदन सिखाते हैं, उनके लिटरेचर में भी है कि आप प्रैक्टिस करो, बट आप देखेंगे तो चंद्रभेदन जो है किसी भी ट्रेडिशनल टेक्स्ट में इसका वर्णन आपको नहीं मिलेगा. Nowhere you will find it. Only contemporary teachers and the recent Guru Jana has come ahead with this aspect or this perspective of doing the practice of Chandrabhedan. See, the same applies to Surya Namaskar also. Huh. It's not found in your text, but empirically it is found to have so many benefits. Right? So, Chandrabhedan के क्या benefits नजर आते हैं? चंद्रभेदन के बेनिफिट्स यही है कि अल्टीमेटली जो भी आप ब्रीदिंग करो, हर ब्रीदिंग प्रैक्टिस का जो आपको इफेक्ट होता है वो इफेक्ट आपको महसूस होना है. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जस्ट टू अंडरस्टैंड सत्व रज तम, वी वर नॉट टोल्ड टू डू एनी प्राणायाम एज सच, बट सिटिंग क्वाइटली एंड एक्सपीरियंसिंग द फ्लो ऑफ ब्रेथ by doing it in 4 parts breathing: inhalation, retention, exhalation, retention. So maybe by doing Chandrabhedan also we are experiencing the same effect. You are becoming calm, you are becoming quiet, you are becoming composed, and you are feeling that after that Chandrabhedan the energy which was more and more improvised, now here we are feeling that calmness and balance. ऐसा experience जरूर होता है. So that itself is one of the benefit. But that benefit can be done without doing left nostril to right nostril breathing. आप क्या करो, शांति से बैठ जाओ and give yourself more time. The same effect will be there. So how to prove it? The hypothesis becomes, null over here. So we are not proving anything as such. Because ऐसे भी हो रहा है वैसे भी हो रहा है, तो हाउ यू कैन से कि चंद्रभेदन वो आपको कामनेस ला सकता है. सी बिटवीन वी डू एक्सक्लूसिव लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, और अपन लेफ्ट को राइट को क्लोज करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल ही करते हैं. दैट विजुअली चंद्रभेदन व्हिच इज लेफ्ट करके राइट करते हैं, तो दोनों में क्या इफेक्ट का फर्क होता है? दैट इज जब हम चंद्र अनुलोम विलोम करते हैं और सूर्य अनुलोम विलोम करते हैं, the purpose behind doing the uninostril breathing is to activate our nadis. कि भाई हम अब आगे प्राणायाम करने जा रहे हैं तो हम ये देख लें कि whether our nostrils are opened clear to flow or not. और इसका दूसरा रीजन ये है कि our left nostril is connected with our right brain and right nostril is connected with our left brain. अगर आप डीपली उसको स्टडी करने भी जाएंगे ना, तो you will find this kind of changes taking place and crisscrossing and spreading throughout the body. तो जब हम left nostril breathing करते हैं तो we are literally carrying out those kind of activation of our right brain which is said to be creative brain, and the left brain is said to be logical one which is conditioned one. जैसे कि सुबह उठना, खाना पीना, सोना, जो दिन भर की एक्टिविटीज जो है कंडीशनड तरीके से हम करते हैं, that is a left brain. But to make the left brain change its paradigm, let that paradigm shift happen and always become more creative, there has to be the involvement of the right brain also. And in order to keep that right brain making the changes in the left brain work, the left nostril plays a very vital role there. तो वहां के हद तक जो है ना, आपका left nostril breathing will literally make some impact. Only left nostril breathing. And that's why it is said Chandra Anulom Vilom and Surya Anulom Vilom. और इसका जो वर्णन है, एक सदर्न इंडिया में तिरुमूलार बोल के एक संत हैं जो एक योगी भी हैं. उन्होंने अपने राइटअप में बोलो या किताब में कहो, जिसका नाम है तिरुमंदिरम, उसके अंदर ये
चंद्र अनुलोम विलोम और सूर्य अनुलोम विलोम का वर्णन किया हुआ। एंड ही वेंट ऑन टू गिव मेनी बेनिफिट्स ऑफ द सेम। एंड ही सेड कि लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग will certainly bring your anxiety level calm down, because already your right is hyperactive, so you give more preference to the left nostril breathing. So giving more preference to left nostril breathing only means that you are giving break to your right nostril, and that break to your right nostril breathing itself is an understanding that the whole condition calms down and becomes peaceful. ऐसा नहीं है कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमने कुछ बहुत ही बड़ा चेंज किया, लेकिन लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे फोकस करना ही राइट नॉस्ट्रिल से फोकस को हटा देना है। तो मोर देन एक्टिवेटिंग विथ लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इट इज द नॉट डूइंग विथ द राइट नॉस्ट्रिल विच इज द कंसिडरेशन देयर, एंड दैट ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस। आशुतोष सर, आप कुछ पूछ रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मुझे तो वो 12 मात्रा तक पहुंचने ही काफी साल लग जाएंगे, ऐसा लग रहा है। सर जी काफी साल नहीं, मैंने तो ये जो है अधमा, वहां तक हाँ, पहुंचने में काफी टाइम लग जाएगा। एग्जैक्टली, यू आर राइट। इनफैक्ट आप तो ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ साल लग जाएंगे, ज्यादा साल लग जाएंगे, काफी साल लग जाएंगे। मैं तो ये सोच रहा हूं कि मुझे ऐसा करने में कितने जन्म लग जाएंगे। See, now here let me tell you, Guruji used to say, if you want to do 5 minutes of meditation, 5 minutes of samadhi like practice, or 5 minutes of pranayamic to the higher level, then the rest of the 23 hours and 55 minutes should be like preparation for that 5 minutes. अब आप इस पर गौर करिए कि हमको हमारे कितनी चीजों के अंदर बदलाव लाना है। जब तक वो बदलाव आते नहीं, जो आपने कहा ना कि मुझे कई साल लग जाएंगे, उसमें बदलाव नहीं आएगा। यस सर, फर्दर कमेंट्स फ्रॉम यू। हाँ यस, बोलिए सर। 30 हो गया, आई थिंक दैट्स, लेट्स वी शुड कॉल इट अ डे। ओह माय गुडनेस, इट इज 12:30। ये चर्चा कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हो गई। अब नेक्स्ट वीक के लिए रखते हैं इसको। फंडामेंटल, यू सी, ये प्राणायाम के बिल्कुल फाउंडेशनल है, सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑल नेक्स्ट। नमस्ते सुनील।